Namaste, hello student. Today I am going to discuss about the transaction exposure. In our syllabus we are having a three kind of exposure, that is transaction exposure, translation exposure and the economic exposure. So transaction exposure is dealing with the situation where the importer or exporter they are dealing right now and their payment or receipts are depend on the future date and they are exposed to the risk of the change in the exchange rate compared to today's rate. So and how they are able to manage this kind of risk. So in this chapter we are going to discuss this in a detail. So let us start our discussion. Divyang Joshi, I'm assistant professor at Parul Institute of Management and Research, Parul University. So as we all know that when any companies are dealing with the international business, so they are facing many risks like political risk, economic risk, then competitor risk, market risk and exchange rate risk. So our discussion will be based majorly today on the exchange rate related risk. So before I start a transaction exposure, so let us understand the first difference between exposure and risk. So I give you a simple example. Like when in summer in the afternoon, suppose you are roaming outside of your home. So you are roaming in a sunlight. So you are exposed to sunlight. And when you are exposed to sun and heat, so but obvious you are having a risk of sunburn, you are having a risk of sunstroke. So that exposure and the risk are two different things. The exposure means the situation that you are facing, and because you are facing that situation, so you are having a risk. So suppose you are not having that exposure, definitely you will not have that particular risk. For example, when you are driving, so but obvious you are exposed to the risk of accident. So if you are not driving and if you are sitting at a home, so but obvious there is a no risk of a road accident. Okay, so this is what the basic difference. So let us start with the first. So now if you can look at the last paragraph where I explained with the Tata Group. So the Tata Group, we know that they have a subsidiary in the USA also. So the valuation of US subsidiary will affect the valuation of Tata Group that as a whole in India. So this is known as your overall exposure. And when we talk on a exchange risk, so exchange rate risk is a particularly related with the potential gain or losses which can arise from the exchange rate changes. So now why the exchange rate risk that Tata is facing? Because only they are exposed to the international business. So if they are not exposed to international business, then definitely there will be no risk of a currency exchange risk. So in short, we can say the exposure related to the total value of the assets and liabilities. That is, it is talking about the overall valuation, while the exchange rate is related with the effect in terms of the income shortfall or expense shortfall. Or might be it can be excess of expense and revenue also. So that your finally impact on the cash flow because of the change in the exchange rate, that we call it as a exchange risk. So I hope you now understand the difference between the exposure and the risk. Now let us start with the types of exposure. So as I explained that we are having a three major exposure in the syllabus, that is transaction or conversion exposure, then translation or accounting exposure and the economic exposure. So transaction exposure that we are going to discuss today in detail. So it is because of that when you convert the foreign currency into your domestic or home currency, that is that is the receivables or payables, that is required to convert into domestic currency, and the risk that you face, that is we know consider it as a transaction or conversion exposure. So compared to transaction, if you remember this conversion exposure, so I think it will be very easy to remember. So the exposure or risk because of the conversion issue. So because you are having some receivables and payables into domestic currency,
So definitely you need to convert the foreign currency into domestic currency, and that what you face a risk, we call it as a transaction exposure. Now come to the translation or accounting exposure. Now accounting exposure, I insist that you focus on this part. So accounting, we know that accounting is all about the valuation of assets and liabilities. So translation exposure, it is related with the overall valuation of the company. It is not related to particular transaction like this. So this is generally at the end of year or a quarter or half yearly, when company wants to value their, they are preparing their balance sheet for the parent company. So whatever may be their subsidiary into foreign nation, so they need to convert that foreign assets and liabilities into home nation's currency, that is parent's company's financial statement. So at that time, whatever may be the risk arise, we call it as a translation or accounting exposure. And the last one is economic exposure. So apart from these two, whatever may be, that we call it as a economic exposure. For example, because your exchange rate got changed, and because of that your product becomes very costly in your own country, because then import is cheaper compared to your product. So that is because of the exchange rate, the product of the importer become cheap, and you are facing the lack of sales or the decline in the sales. So that is known as your economic exposure, and it has a effects on your future cash flow. Okay, so that is known as a economic exposure. So in coming videos, we'll discuss translation and economic exposure. So we are continuing with the transaction exposure. So now you all know that the transaction exposures deal with the changes in cash flow that results from existing contractual obligation denominated in foreign currency. So in simple sense, we can say that when the importer or exporter, generally when they purchase or sell today, and but obviously the payment or the receipts is agreed to that close into a future date. So today's exchange rate and the rate on the real payment receipt will not going to be remain same, and that is why the exporter and importer are facing a risk, and that is known as a transaction exposure. Now see why that there is a risk, because of this transaction. So as I explained earlier, that risk is because of the exposure. So here अगर importer और exporter अगर import और export नहीं करते और पेमेंट जो है वो अभी के अभी कर लेते, तो माइट भी ये रिस्क नहीं होता. लेकिन जनरली होता क्या है, इंपोर्टर आज परचेस करेगा लेकिन वो पेमेंट करेगा 3 months या 90 days के बाद या 1 महीने के बाद. सो बट ऑब्वियस आज का रेट और 1 महीने के बाद का रेट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट. सो दैट इज क्रिएटेड ट्रांजेक्शन एक्सपोजर. सिमिलरली एक्सपोर्टर है जिसने आज माल बेचा है, अगर वो आज ही पेमेंट रिसीव कर रहा है, सो देयर इज नो एनी रिस्क. लेकिन वो माल आज बेच रहा है बट उसका जो पेमेंट है वो माइट भी 1 महीने या 3 महीने या 6 महीने बाद आएगा या इंस्टॉलमेंट में आएगा. सो बट ऑब्वियस आज का रेट और जब पेमेंट आएगा वो रेट में डिफरेंस आने वाला है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी माइट बी द इंपोर्टर और एक्सपोर्टर माइट बी पे लेस और हायर और रिसीव लेस और हायर. सो दैट इज नोन एज अ ट्रांजेक्शन एक्सपोजर. So now, so the simple thing, if the payment or receipt can be like in a own country or own currency, then there will be no risk related with this transaction. So this gain or loss that arise because of exchange rate fluctuation, we call it as a transaction exposure. Now when any company who is importing or exporting, so but obvious it is not possible that they have a transaction in own currency. Means अगर वो we are going to discuss this in coming slide. लेकिन अगर कोई इंपोर्टर और एक्सपोर्टर बोलता है कि नहीं मेरी करेंसी में, मेरी कंट्री की करेंसी में आपको पेमेंट करना है, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्क इट आउट. सो दैट इज वन ऑफ द लाइक टूल टू मैनेज दिस रिस्क. सो नाउ सी by default when any company is dealing with the import or export, so they are going to face this exposure.
एंड व्हेन दे आर गोइंग टू दिस फेस दिस एक्सपोजर, तो बट ऑब्वियस वो एक्सचेंज रिस्क उसको फेस करना ही है. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ दिस कंपनीज कैन मैनेज दिस एक्सपोजर. सो नाउ सी, ये चैप्टर में जो सबसे ज्यादा फोकस है वो इसमें ये स्ट्रेटेजिक इश्यूज है, that how these companies or who are exposed to this transaction exposure can manage this kind of risk. So but obvious the company cannot make it financial position open. You easily understand with the example. Suppose कोई एक्सपोर्टर है जिसने $1,00,000 का माल आज बेचा है, आज का रेट $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज है. सपोज पेमेंट 3 महीने के बाद आने वाला है. अगर पेमेंट 3 महीने के बाद आने वाला है और उस टाइम अगर अपना रूपी एप्रिशिएट हो जाता है, सो दैट इज $1 इज इक्वल टू सपोज 70. आज का रेट 70 है, लेकिन अगर एप्रिशिएट होगा तो सपोज $1 इज इक्वल टू 68 हो गया. तो उसको 70 लाख के कंपेयर में 68 लाख रुपीज मिलेगा व्हेन दे कन्वर्ट $1,00,000 इनटू रुपीज. और सिमिलरली अगर रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है, सो $1 विल बी सपोज 72 रुपीज हो गया. तो $1,00,000 कन्वर्ट करेंगे तो 72 लाख रुपीज मिल गया. तो ये रिस्क भी है और प्रॉफिटेबल सिचुएशन भी हो सकती है. सो प्रॉफिट तो सबको पसंद है, लेकिन भाई लॉस कैसे डील करेंगे. सो लेट अस डिस्कस. So there are two major ways that company can hedge this transaction exposure or have a kind of a protection. So there are financial contracts and operational contracts. So in financial contracts, we are having 3: forward market hedge, money market hedge, and option market hedge. In operational technique, we are having a choice of the invoice currency, lead strategy, and exposure netting. So we'll discuss this one by one with a proper example. So let us start with the forward market hedge. Now see, what is a forward market hedge? So when when it is required, like see, I give you example. Then suppose एक importer है, वो importer को suppose आज उसने $1,00,000 का पेमेंट मीन्स परचेज किया है गुड्स. So he need to pay $1,00,000. अगर वो आज ही के दिन पे कर रहा है तो उसको कोई इश्यू है ही नहीं, लेकिन उसको सपोज पेमेंट करना है 3 महीने के बाद. मीन्स ही एग्री टू ही हैज टू पे द $1,00,000 टू द अदर कंट्री और इन US आफ्टर 3 मंथ. सो क्या करेगा ये बंदा, बिकॉज ही इज एक्सपोज टू एक्सचेंज रेट रिस्क. 3 महीने के बाद कोई भी रेट हो सकता है. तो क्या करेगा, बेटर इज वो बैंक में जाएगा और एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा दैट आई विल बाय $1,00,000 आफ्टर 3 मंथ एट पर्टिकुलर रेट. सो इससे क्या होगा दैट आफ्टर 3 मंथ कोई भी रेट हो जाए, उसका जो परचेज रेट है ऑफ $1,00,000 इट इज गोइंग टू बी अ फिक्स. सिमिलरली लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ द एक्सपोर्टर जिसको 3 महीने के बाद $1,00,000 मिलने वाला है. सो वो क्या करेगा दैट वो बैंक में जाएगा और बैंक को बोलेगा सर मैं आपको $1,00,000 3 महीने के बाद बेचूंगा, और वो रेट फिक्स हो जाता है. सो नाउ आफ्टर 3 मंथ कोई भी रेट हो, दे विल बी नो रिस्क रिलेटेड विद द एक्सचेंज रेट मूवमेंट. सो दिस आर द टू सिचुएशन. लेट अस अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑन अ क्विक नोट. सो लाइक फॉर एग्जांपल, यू आर एन इंडियन इंपोर्टर of US mobile phones and have ordered next year's inventory. So payment of $1 million is due in 1 year and the current rate is $1 is equal to 65.5 rupees. After 1 year, the rate can be greater than or less than current rate. So भाई एक इंडियन इंपोर्टर है और फॉर आवर इजी अंडरस्टैंडिंग पूरे ये पीपीटी में मैंने $, डिनोमिनेटेड ट्रांजेक्शन रखा है. सो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सो एक साल का पूरा उसने इन्वेंटरी खरीद लिया है और ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई $1 मिलियन जो मुझे पे करना है, तो मैं अब 1 साल के बाद आपको पूरा पेमेंट कर दूंगा. सो अभी आज का रेट 65.5 है. सो आफ्टर 1 ईयर अभी ये 65 से ज्यादा भी हो सकता है और 65 से कम भी हो गया. सो अगर 65 से कम हुआ तो वो इंपोर्टर के लिए फायदा है, बिकॉज सी
ये सिंपल है, 65.5 मिलियन उसको रुपीज चाहिए अगर आज पेमेंट कर रहा है। तो अगर एक साल के बाद ये 65.5 से कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल 60 हो गया, तो उसको सिर्फ 60 मिलियन रुपीज पे करना है। लेकिन अगर 70 हो गया सो उसको 70 मिलियन पे करना पड़ेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ कैन द इंपोर्टर फिक्स द कैश आउटफ्लो इन डॉलर। सो क्या सिंपल अंडरस्टैंडिंग है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो क्या होगा, टुडे दैट इंपोर्टर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक टू परचेज $1 million एट द रेट ऑफ 66.5। फॉर एग्जाम्पल एक साल के बाद का जो आज रेट है इसको बोलेंगे हम फॉरवर्ड रेट। सो एक साल के बाद का जो फॉरवर्ड रेट है इट इज $1 इज इक्वल टू 66.5। सो आफ्टर 1 year वॉट एवर मे बी द प्रिवेलिंग रेट, तो सपोज वो 60 भी हो सकता है या 70 भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए जो इंपोर्टर है उसके लिए तो आज रेट फिक्स हो गया कि भाई मुझे एक साल के बाद 66.5 मिलियन रुपीस बैंक को देना है। बैंक मुझे $1 मिलियन देगा और मैं अपने क्लाइंट को पे कर दूंगा, सप्लायर को पे कर दूंगा, दैट्स ऑल। So after 1 year, whatever may be the prevailing rate, you will purchase $1 million from the bank at 66.5 and deliver to the supplier in US. So now see that you will not impacted due to change in exchange rate after 1 year. So now this is known as a forward market hedge and this is an example of importer. So now let us first discuss the advantage of forward contract rate. So as we see that contract price was 66.5. अगर एक साल के बाद अगर ये रेट $1 इज इक्वल टू 70 हो गया तो इंपोर्टर को अगर हेज नहीं किया है तो 70 मिलियन रुपीस देके $1 मिलियन खरीदना पड़ता बैंक से। लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है सो उसका रेट फिक्स हो गया, तो एक साल के बाद कोई भी रेट हो सो उसका परचेज प्राइस फिक्स हो गया। सो सपोज 70 हो रहा है देन ही विल बी इन बेनिफिट। लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज भी है बिकॉज वी नो दैट द फॉरवर्ड इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव के लिए बोला जाता है इट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड, दो धारी तलवार है। ओके वो एक साइड फायदा करवा आपको लॉस नहीं होने देता लेकिन प्रॉफिट भी नहीं होने देता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दैट अगर रूपी एप्रिशिएट होके अगर $1 इज इक्वल टू 60 हो गया तो आप ये यहाँ पे समझ सकते हो अगर हेजिंग नहीं किया होता तो इंपोर्टर को फायदा होता, लेकिन ऐसा उन्होंने हेजिंग किया है तो उसको तो 66.5 के हिसाब से ही परचेज करना पड़ेगा इवन दो द रेट इज 60। Now let us see that how it is impact. So this is a payoff of a importer. So अगर $1 is equal to 60 हो जाता, अगर अनहेज पोजीशन है तो उसको 60 मिलियन रुपीस बैंक को देना पड़ता और 60 मिलियन उसका कॉस्ट होता। लेकिन फॉरवर्ड हेज उसने किया है 66.5 के हिसाब से, सो बैंक को तो उसको 66.5 मिलियन रुपीज ही पे करना है। सो उसका जो लॉस है दैट विल बी समवेयर अराउंड दैट इज 6.5 मिलियन। सो सिमिलरली अगर 65.5 हो रहा है देन लॉस विल बी 1 मिलियन। अगर 66.5 हो रहा है सो नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर रूपी आपका डेप्रिशिएट हो रहा है और इट इज कम्स टू $1 इज इक्वल टू 70, so now see here the situation would be different and compared to 70 million he has to pay only 66.5 million rupees. So that will be a notional profit of 3.5 million. So that is what the forward hedge is used for a situation of import. Let us understand first on a example of a exporter. So अगर Indian exporter है सो सपोज वी अज्यूम दैट के यूएस ऑटोमोबाइल कंपनी है और उसको ये लोग माल बेच रहे हैं एंड $1 मिलियन इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन 1 year एंड आज का रेट है $1 इज इक्वल टू 65.5। सो अगर आप एक साल के बाद, अभी यहाँ पे रिस्क क्या है कि एक साल के बाद अगर $1 इज इक्वल टू 70 हो गया तो उसके लिए फायदा है बिकॉज 70 मिलियन रुपीज मिलेगा एक्सपोर्टर को। लेकिन अगर रेट 60 हो गया तो उसको 60 मिलियन रुपीज मिलेगा तो उसको घाटा हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इज हाउ कैन एक्सपोर्टर कैन फिक्स द कैश इनफ्लो इन अ डॉलर्स। सो ये इंपोर्टर से उल्टा हो जाएगा।
यहाँ पे एक्सपोर्टर क्या करेगा, ही गो टू द बैंक एंड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल $1 million एट अ रेट ऑफ 66.5। वो बैंक में जाएगा और बोलेगा 1 साल के बाद $1 million है, मैं आपको 66.5 रुपीज में बेच दूंगा। सो नाउ आफ्टर 1 year कोई भी रेट हो जाए, ही इज नॉट गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। सो नाउ यू सी दैट इज अगर $1 इज इक्वल टू 60 हो जाए, सो अगर हेजिंग नहीं किया होता तो अगर वो मार्केट में $1 million बेचता तो उसको 60 million रुपीज मिलता, लेकिन ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, सो उसका जो इनकम है इट इज फिक्स बाय 66.5 million रुपीज। सो यहाँ पे उसको नोशनल प्रॉफिट हो रहा है 6.5 million। अगर 65.5 होता है रेट, तो इन दैट केस $1 million का $1 million रुपीज का प्रॉफिट होता है। अगर 66.5 है सो कोई प्रॉफिट न लॉस है। लेकिन अगर $1 इज इक्वल टू 70 हो जाता, सो यहाँ पे देखो कि उसको फायदा होगा। अगर अनहेज नहीं किया, मीन्स हेजिंग नहीं किया होता तो उसको 70 million रुपीज मिलता, लेकिन हेजिंग किया है तो उसका जो कन्वर्जन रेट के हिसाब से उसको 66.5 million रुपीज ही मिलेगा। सो यहाँ पे उसका नोशनल लॉस हो रहा है 3.5 million। सो कब ये हेजिंग फायदेमंद है? सो जब जैसे यहाँ पे हमने देखा तो इंपोर्टर को यहाँ पे फायदा कब है? $1 इज इक्वल टू 70 हो रहा है, मीन्स जब उसको ये लग रहा है कि फ्यूचर में जो रेट है वो डेप्रिशिएट होने वाला है होम करेंसी, सो एट दैट टाइम हेजिंग वुड बी प्रॉफिटेबल। सिमिलरली एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर उसको लग रहा है नहीं अपना करेंसी एप्रिशिएट होने वाला है, सो एट दैट टाइम हेजिंग वुड बी प्रॉफिटेबल। So based on the expectation, the importer or exporter can enter into a hedging contract. Now let us come to the second hedging. So as we discussed that there are financial contract में 3 hedging हमको पढ़ना है। फॉरवर्ड मार्केट हेज जो मैंने अभी समझा दिया, मनी मार्केट हेज एंड द ऑप्शन मार्केट हेज। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द मनी मार्केट हेज। अभी मनी मार्केट में क्या है, लाइक इट इज अ सिंपल एज अ इंटरेस्ट आर्बिट्रेज जो आप पढ़ चुके हो। सो यहाँ पे क्या है, दैट इज व्हेन अ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे समथिंग, तो वो क्या करेगा, वो बंच ऑफ दैट फॉरेन करेंसी आज ही बाय करके इन्वेस्टमेंट करके छोड़ देगा। और सो 1 साल के बाद जब वो पेमेंट ड्यू आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट में से पैसा जो आएगा उससे वो पूरा अपना लायबिलिटी पे करेगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल, सो इट विल बी क्वाइट इजी। फॉर एग्जांपल, suppose you are an Indian importer and of US mobile phones and have ordered next year's inventory and payment of $1 million is due in 1 year and current rate is 65.5. After 1 year, the rate can be greater than or less than current rate. So that as we discussed in the last slides. So the current rate of US is 5% and in India it is a 10% per annum. This is the interest rate. So now for importer and exporter, the money market hedge can be framed in the following steps. So let us understand for the import. So now see, we divide this into 2 parts. At the beginning means right now, because आपने आज ही माल खरीदा है और आपको पता है कि आपकी लायबिलिटी $1 million आपको पे करना है। सो आज आपको कुछ स्ट्रेटेजी इम्प्लाइड करना है। You have to frame this strategy and then we understand the situation on the expiry. So हम क्या करेंगे, that is a first step is you need to calculate the present value of the liability in the foreign currency. मीन्स आपको पता है कि आपको $1 million पे करना है। ओके, सो उसका प्रेजेंट वैल्यू यूएस के हिसाब से, बिकॉज यूएस का इंटरेस्ट रेट कितना था 5%, सो उसके हिसाब से आज वैल्यू उसका हो रहा है 952 और $952,381. Now this is a step 1. So what you supposed to do is you have to find it out the present value of the liability, then convert that into home currency at the current rate. So you know that now it's a $952,000 है, तो और आज का रेट 65.5 है। सो उसको आज के रेट के हिसाब से अगर रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 62 million रुपीस।
नाउ दिस इज द सेकेंड स्टेप. थर्ड में क्या करेंगे, बोरो इक्वल अमाउंट इन द होम करेंसी एट गिवन इंटरेस्ट रेट. सो क्या करेंगे हम लोग, 62 मिलियन है वो इंडिया में 10% के हिसाब से बोरो करेंगे एक साल के लिए. और जैसे ये पैसा आया, सो नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या करेंगे, कन्वर्ट होम करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी एट ए करंट रेट. सो वी नो दैट बिकॉज आज का रेट तो 65 है, यही हमने किया था. तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा $9,52,000. और जो लास्ट स्टेप है दैट इज इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी इन अ फॉरेन कंट्री एट अ गिवन रेट. सो ये जो $9,52,000 आया उसको हम क्या करेंगे, 5% के हिसाब से एक साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे. तो इससे क्या होगा, नाउ सी एक साल के बाद सिचुएशन क्या होगी, उसको 5% के हिसाब से आपके पास $1 मिलियन आ जाएगा. तो ये $1 मिलियन आपको जो पे करना है वो डायरेक्ट आप पे कर दो, बात खत्म. और जो $1 मिलियन जो दैट इज जो रुपीज है, ओके, बिकॉज आपको पे करना है. सो क्या होगा, ऑन एक्सपायरी you receive an investment in foreign currency and pay the liability and pay the borrowed fund in home currency, and you can calculate the cost of money market hedge. So let us understand. So ये पहले, this is the beginning of the contract. I repeat the step. क्या करना है, सिंपल, आपको कितना पैसा पे करना है उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू ढूंढो, उसको इंडियन रूपी में कन्वर्ट करो, वही रुपीस हम बोरो करेंगे अपनी कंट्री में, और जो बोरो करके जो पैसा आ रहा है उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके एक साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नाउ ऑन एक्सपायरी, बिकॉज हमने $9,52,000 इन्वेस्ट किया था, तो 5% के हिसाब से एक साल के बाद वो 1 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो जैसे ही वो 1 मिलियन आएगा डॉलर, उससे हम अपना लायबिलिटी पे कर देंगे. मीन्स हमने इंपोर्ट किया था, हमको पे करना था, तो सप्लायर को $1 मिलियन पे कर देंगे और अपना लायबिलिटी फुलफिल हो जाएगा. नाउ कम टू द इंडिया, बिकॉज हमने बोरो भी तो किया था, हमने बोरो किया था 62 मिलियन रुपीज एट 10%. तो एक साल के बाद इंटरेस्ट के साथ हमको कितना पे करना पड़ेगा, दैट इज 68,619,000 रुपीज पे करना पड़ेगा. तो अगर हम इसका रेट देखें तो क्या होगा, हमने कितना पे किया, 68 मिलियन इंडिया में पे किया, और इन अगेंस्ट ऑफ $1 मिलियन. तो हमारा रेट कितना हुआ एक डॉलर का, 68.619. नाउ सी यहाँ पे आपका फॉरवर्ड में क्या कॉस्ट था, 66.5. ओके, आई एम टॉकिंग इन दिस पार्ट, इंपोर्टर. ओके, यहाँ पे अपना क्या प्राइस से हम लोगों ने रेट किया था, दैट इज 66.5. हमारा जो फॉरवर्ड रेट था इट वाज 66.5. लेकिन अगर हम मार्केट हेज कर रहे हैं तो अपना कॉस्ट कितना हो रहा है, 68.61 और 68.62. सो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मनी मार्केट हेज बहुत ज्यादा है. सो इससे बेहतर है हम फॉरवर्ड मार्केट हेज में जाएंगे और मनी मार्केट हेज नहीं करेंगे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ एक्सपोर्टर. सो यहाँ पे भी स्टेप सेम रहेगा, एट द बिगिनिंग और ऑन द एक्सपायरी. लेकिन यहाँ पे उल्टा है, बिकॉज हमारा जो पैसा है वो हमको जो इनकम मिलने वाली है वो फॉरेन करेंसी में मिलेगी. तो हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी को बोरो करेंगे, ओके, एंड उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे. सो पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड इनकम. सो नाउ आई कंटिन्यू विद दैट एग्जांपल जहां पे आपको 1 मिलियन रिसीव करना है. सो सपोज यू सपोज टू रिसीव $1 मिलियन. ओके, तो यूएस में 1.05 के हिसाब से आज का जो उसका प्रेजेंट वैल्यू होगा वो कितना होगा, $9,52,000. सो इक्वल अमाउंट का हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन में $9,52,000 बोरो करेंगे 5 साल के हिसाब से. सो एक साल के बाद हमको ये $1 मिलियन पे करना पड़ेगा. और ये जो अभी हम बोरो कर रहे हैं $9,52,000, उसको हम क्या करेंगे, होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे एट द करंट रेट, दैट इज 65.5. तो हमको कितना रुपीस मिलेगा, 62 मिलियन रुपीस मिलेगा. एंड उसको हम क्या करेंगे,
हम इंडिया में 10% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर देंगे। देखो यहाँ पे स्टेप्स इंपोर्टर के कंपेयर में उल्टा हो रहा है। इंपोर्टर में हमने क्या किया था, होम करेंसी में बोरो किया था और इन्वेस्ट किया था फॉरेन करेंसी में। एक्सपोर्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोरो कर रहे हैं फॉरेन में और इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने होम कंट्री में या डोमेस्टिक रेट पे। अभी एक्सपायरी पे क्या होगा, बिकॉज हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है, ओके, और वहां पे बोरो किया है, तो हम क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है सेकंड स्टेप में फोकस करेंगे। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, दैट इज जो बिकॉज हमने एक्सपोर्ट किया था, तो कस्टमर जैसे ही हमको 1 मिलियन देगा उसमें से हम अपना लायबिलिटी पे कर देंगे। बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोगों ने ये 952 दैट इज 1000 और $952,000 जो बोरो किया था 5% के हिसाब से, सो एक साल के बाद हमको $1 मिलियन पे करना है। तो जैसे ही वो अपना क्लाइंट 1 मिलियन डॉलर देगा तो हम पे कर देंगे डायरेक्टली। अभी यहाँ पे जो इंडिया में हमने इन्वेस्टमेंट किया था 10% के हिसाब से, तो एक साल के बाद हमको मिलेगा 68 मिलियन रुपीस। तो अभी तो कॉस्ट कितना हो गया, इनकम अपना 68 मिलियन रुपीस मिला है डिवाइड बाय $1 मिलियन। तो अपना जो इनकम रेट हो गया वो 68.619 हो गया। तो नाउ सी फॉरवर्ड रेट में रेट क्या था अपना 66.5, लेकिन ये रेट ज्यादा है। सो एज द रिसीव ऑफ डॉलर रेट इज हायर देन द फॉरवर्ड हेज रेट, द मनी मार्केट हेज इज प्रिफरेबल। नाउ यू सी दैट फॉर इंपोर्टर वी से दैट इट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज वो 66.5 से ज्यादा था, लेकिन यहाँ पे तो अपने को ज्यादा मिल रहा है, तो एज अ एक्सपोर्टर दिस विल बी द प्रिफरेबल स्ट्रेटेजी। नाउ इफ यू सी दैट in a forward and money market hedge, ओके, द डिसएडवांटेज क्या था कि जो फेवरेबल सिचुएशन थी उसमें हम लोग को प्रॉफिट नहीं मिल रहा था। सो वी कम टू द थर्ड स्ट्रेटेजी, दैट इज ऑप्शन मार्केट हेज। सो ऑप्शन यू ऑल नो दैट इज देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्शन, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन, वेयर कॉल गिव यू अ राइट टू परचेज एंड द पुट गिव्स यू राइट टू सेल। सो नाउ जब आपका पेएबल्स है, मीन्स यू आर अ इम्पोर्टर और आपको फॉरेन करेंसी पे करना है या डॉलर पे करना है, तो यहां पे क्या एडवाइजेबल होगा, यू एंटर इनटू अ कॉल ऑप्शन। सो यू पे सम प्रीमियम एंड फिक्स आउट द योर रेट। सो अगर आपके फेवर में ये आ रहा है तो बट ऑब्वियस यू विल एक्सरसाइज द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके फेवर में नहीं है then you forget the premium and you can have the other advantages. Similar exporter के लिए क्या होगा, because he is supposed to receive, तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होगा पुट ऑप्शन, so he has a right to sell at the decided rate. So let us understand again this with the example, so it will be quite easy to understand. So now for example, I continue with the same example, that is you are an importer and US mobile phone inventory एक साल का है, आपको $1 मिलियन एक साल में पे करना है और आज का रेट है 65.5। एक साल के बाद कोई भी रेट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे इंपोर्ट है, आपको पे करना है, आपको खरीदना है डॉलर, तो आप क्या करोगे, यू एंटर इनटू अ कॉल ऑप्शन and with a strike price of 66.5, means you have a right to purchase $1 million at a 66.5, but obvious जब आप right buy करोगे तो उस पर प्रीमियम पे करना है। so suppose premium is 0.01, it means total cost is 1% of your contract value, so that comes to in Indian rupees आज के 66.5 के हिसाब से कितना होगा, 6,65,000 रुपीज आपको पे करना है एज अ प्रीमियम, और यू आर हैविंग अ राइट टू परचेज दिस $1 मिलियन एट अ 66.5। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। सो देखो फॉरवर्ड में क्या था, आपको जब फेवरेबल सिचुएशन था तो भी आपका कॉस्ट फिक्स था 66.5 और वो आपको प्रॉफिट अर्न नहीं करने दे रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, जब फेवरेबल सिचुएशन है तो क्या करेंगे आप, आपका प्रीमियम भूल जाएंगे एंड यू डू नॉट एक्सरसाइज योर
कॉन्ट्रैक्ट फॉर एग्जाम्पल रेट हो गया 60 मीन्स नाउ और आपके पास राइट है कि आप $1 मिलियन 66.5 के हिसाब से परचेज कर सकते हो, लेकिन आज का रेट तो 60 है. सो बट ऑब्वियस इट्स बेटर टू फॉरगेट द प्रीमियम. हम इम्पोर्टर है वो अपना राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा एंड मार्केट में से वो 60 के भाव से वो $1 मिलियन परचेज करेगा और पेमेंट कर देगा. सो नाउ इन दैट केस वो 60 का तो जो पेमेंट है उसके हिसाब से 60 मिलियन और जो 6.65 था मिलियन दैट इज 0.6 मिलियन और 6,65,000 जो रुपीस उसने प्रीमियम कॉस्ट था वो उसको भूल जाना पड़ेगा. सो टोटल उसका कॉस्ट लगेगा दैट विल बी 60.6665,000. नाउ सपोज इससे 66.5 ओके जो अब उसका एक्सरसाइज वाला ही राइट था. सो बट ऑब्वियस इन दैट केस इज नो न्यूट्रल, जो एक्सरसाइज करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो उसका जो कॉस्ट होगा वो दैट विल बी 66.5 प्लस ये जो कॉस्ट है. सो टोटल कॉस्ट हो जाएगा 67.165. नाउ ये कैसे आ रहा है ये समझ लो. दिस वो ये प्राइस से खरीद रहा है बैंक से और ये प्रीमियम का कॉस्ट है, ये दोनों का एडिशन मीन्स ये इनकम वो उसका टोटल कॉस्ट हुआ. सो उसको ये जो टोटल डॉलर रेट क्या कितने में पड़ रहा है 67.16. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पे देखें अगर 67, 69, 72 नाउ इन ऑल दिस केसेस उसके पास राइट है कि वो 66.5 में खरीद सकता है. तो बट ऑब्वियस वो यहाँ पे ये प्रॉफिट में आ रहा है बिकॉज कंपेयर टू 67 ही कैन परचेज एट अ लोअर रेट. कंपेयर टू 69 ही इज अगेन एबल टू परचेज एट द लोअर रेट. सो अगर रेट यहाँ पे ज्यादा है मीन्स रूपी अगर डेप्रिशिएट हो रहा है सो ही विल डेफिनेटली एक्सरसाइज हिज राइट एंड वो परचेज करेगा 66.5 के हिसाब से बिकॉज ही हैज अ राइट टू परचेज और ये उसका प्रीमियम कॉस्ट है. सो इससे ज्यादा इसको कॉस्ट नहीं मिलने वाली है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका जो अपर लिमिट है इट इज अ फिक्स बाय 67.16. सो ये उसका मैक्सिमम कॉस्ट लगेगा. लेकिन अगर नीचे गया सो ही कैन रिड्यूस इट्स कॉस्ट. सो ये फॉरवर्ड में नहीं था. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द लॉन्ग कॉल फॉर द इम्पोर्टर. नाउ सिमिलर थिंग कैन बी फॉर एक्सपोर्टर ऑल्सो. सो एक्सपोर्टर को तो पेमेंट करना होता है. सो व्हाट विल बी द बेनिफिट फॉर दैट ही एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल बिकॉज उसको $1 मिलियन मिलने वाला है एक साल के बाद. तो वो क्या करेगा वो बैंक में जाएगा या ब्रोकर के पास जाएगा एंड ही विल बाय अ पुट ऑप्शन मीन्स ही विल हैव अ राइट टू सेल $1 मिलियन एट अ रेट ऑफ 66.5. सपोज यहाँ पे भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि 1 पर्सन उसको कॉस्ट लग रहा है तो ये परचेज करने के लिए उसको 6,65,000 का प्रीमियम पे करना पड़ेगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अगर रेट ये हो रहा है सो देखो यहाँ पे अगर 60 हो रहा है तो अगर हेज ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होता तो उसको 60 में बेचना पड़ता, लेकिन रेट है अभी 66.5. तो क्या करेगा वो एक्सरसाइज करेगा अपना कॉन्ट्रैक्ट. क्यों? बिकॉज 60 के कंपेयर में इसके पास राइट है कि वो बैंक को 66.5 के हिसाब से $1 मिलियन बेच सकता है. तो वो यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा अपना राइट. तो उसको मिलेगा टोटल 66.5 मिलियन रुपीस. उसमें से अभी देखो यहाँ पे थोड़ा उल्टा जाएगा. क्यों उल्टा जाएगा? बिकॉज यहाँ पे आपको इनकम मिल रही है. तो ये कॉलम कैसे आया? ये आपका टोटल कन्वर्जन इनकम है 1 मिलियन और आपका जो रेट था 66.5 के हिसाब से इतना रुपीस आपको मिलेगा. उसमें से आपने ये पे किया है कॉस्ट तो ये माइनस करेंगे तो इतना इनकम मिलेगा. मीन्स आपको मिनिमम 65.83 के रेट के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है, रुपीस मिल रहा है. सपोज 66.5 हो गया तो यहाँ पे तो एक्सरसाइज करे नहीं करे कोई फर्क नहीं है, यही कॉस्ट रहेगी. लेकिन सपोज ये 69 और 72 हो गया, अगर ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता तो उसका ये पार्ट तो सेम ही रहता. लेकिन देखो ये एडवांटेज है ऑप्शन का. अगर इसको लग रहा है यहाँ पे देखो बिकॉज इट इज नॉट वाइज डिसीजन तो क्या करेगा ही फॉरगेट इज प्रीमियम 6 दैट इज जो पे किया था दैट इज 6,65,000 और वो एक्सरसाइज नहीं करेगा और मार्केट के हिसाब से 69 के हिसाब से $1 लाख बेच देगा.
तो जो उसको मिलेगा वो 69 मिलियन मिलेगा, उसमें से कॉस्ट निकालो तो ये है। तो आप देखो ऊपर में अनलिमिटेड प्रॉफिट है और नीचे में उसका कॉस्ट है वो फिक्स है। सो दैट इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ द ऑप्शंस फॉर द हेजिंग। सो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, दैट इज यूजिंग ऑफ द कॉल ऑप्शन फॉर द इंपोर्टर and usage of the put option for the exporter. Now these were the three strategies of the financial technique. Now we come to the operational techniques. So in operational techniques we are having the first one is hedging through invoice currency. Now see ये सबसे बेहतर तरीका है। इसमें क्या होगा, that suppose Indian company fixes payment and receive in Indian rupees, then company will not face exchange rate risk. ये तो क्या हो गया कि भाई जो कंपनी इनवॉइस इश्यू कर रही है वो बोल देती है कि भाई आपको हम पेमेंट भी रुपी के हिसाब से करेंगे, और जो आपको अगर पेमेंट करना है हमको तो आप भी हमको रुपी में पे करो। तो जो भी इंपोर्ट कर रहा है वो रुपी में ही पे करेगा और जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो रुपी में रिसीव करेगा। मीन्स अगर कोई इंपोर्ट कर रहा है तो बोले मैं 25 लाख का माल या 60 लाख का माल खरीद रहा हूं, तो 60 लाख रुपीज ही देना है उसको सप्लायर को, बाद में कोई भी रेट हो कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो अपना इनकम फिक्स करेगा रुपीज में कि भाई तुझे मुझे 1 करोड़ रुपया दे देना है, तो जो पेमेंट आएगा वो रुपीज में आएगा, तो दैट नथिंग टू वरी कोई भी रेट हो। लेकिन ओके ये जितना अच्छा लग रहा है इतना इजी हो नहीं सकता है। द रीजन बीइंग कि आप सामने वाली बिकॉज जब आप बोलोगे कि हमारा पेमेंट हमारी कंट्री के हिसाब से होना चाहिए या होम करेंसी के हिसाब से होना चाहिए, तो आपका जो रिस्क था वो ट्रांसफर हो रहा है ऑपोजिट पार्टी को, तो सामने वाला शायद ना भी बोले। तो आप कब ये कर सकते हो, पहला कि आपका एक मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन होना चाहिए, मीन्स आप जो बोलो उसके हिसाब से द ऑपोजिट पार्टी शुड बी रेडी, बिकॉज एंड यू शुड हैव अ बार्गेन पावर ऑल्सो, अदरवाइज व्हाई वुड द ऑपोजिट पार्टी फेस अ अननेसेसरी रिस्क। समटाइम्स क्या होता है दैट द इन बिटवीन रास्ता निकलता है, ना उधर का ना इधर का, मीन्स जो भी आपका पेमेंट और रिसीव है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाता है। सो हाफ पेमेंट वुड बी इन अ फॉरेन करेंसी एंड हाफ वुड बी इन द होम करेंसी। सो ये एक ऑपरेशनल टेक्निक है जिससे आप हेजिंग करके आपका रिस्क कम कर सकते हो। देन कम टू द हेजिंग सेकंड टेक्निक, दैट इज हेजिंग वाया लीड एंड लेग। नाउ व्हाट इज अ लीड एंड व्हाट इज अ लेग? सो लेग मीन्स लेट, ओके, मीन्स यू पे लेट, एंड लीड मीन्स यू पे अर्ली। Now देखो that who are importing and exporting, they have some sentiment in for the market or rates, so they know that कि future में क्या rates हो सकते हैं, एक estimation चलता है। So for example अगर if home currency appreciating, okay, appreciating means $1 is equal to 70 का $1 is equal to 68 हो सकता है ना। सो अगर होम करेंसी स्ट्रांग बन रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है, देन इंपोर्टर के लिए क्या फायदा होगा, टू पे लेट। ओके, तो सपोज आज $1 इज इक्वल टू 70 है, इंपोर्टर को आज पेमेंट करना है, उसको लग रहा है नहीं आने वाले 1-2 महीने में ये रेट $1 इज इक्वल टू 68 हो जाएगा, तो उसके लिए डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे देखो, सो डायरेक्टली यहाँ पे ये एग्जाम्पल के हिसाब से डायरेक्टली 2 लाख रुपीज का फायदा हो जाएगा, बिकॉज $1 लाख का पेमेंट करना है, आज का रेट 70 है और एक्सपेक्टेड है ये 68 हो जाएगा। तो ये वो रिक्वेस्ट करेगा अपने सप्लायर को कि भाई अगर पॉसिबल है तो थोड़ा टाइम हमको ज्यादा दो, और माइट भी यहाँ पे अगर केस अगर $1 मिलियन का है तो थोड़ा एक्स्ट्रा पे करने का भी कोई इश्यू नहीं होता है, बिकॉज दैट विल बी अगेन प्रॉफिटेबल फॉर द इंपोर्टर। सिमिलरली अगर एक्सपोर्टर है और ये एक्सपेक्टेड है दैट द रिवर्स सिचुएशन, ओके, यहाँ पे कि भाई आज $1 इज इक्वल टू 70 है और उसको लग रहा है रुपी एप्रिशिएट होगा और ये 168 हो जाएगा, तो जैसे इंपोर्टर बोल रहा है मैं लेट पे करूंगा, लेकिन एक्सपोर्टर क्या बोलेगा, नहीं भाई अभी दे दे, ओके, बिकॉज उसका पेमेंट 2 महीने के बाद अगर आने वाला है और रेट अगर $1 इज इक्वल टू 68 हो गया
तो उसको कम रुपीस मिलेगा, तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्टर थोड़ा कैश डिस्काउंट भी दे देगा या कुछ ऑफर देगा और बोलेगा नहीं आज ही पेमेंट कर दे। तो आज अगर पेमेंट होता है तो $1 इज इक्वल टू 70 है, तो कुछ किए बिना भी 2 लाख का फायदा उसको हो रहा है, कंपेयर टू लाइक अगर 2 महीने के बाद मिला तो $1 इज इक्वल टू 68 हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन दैट एक्सपेक्टेशन आपका पेमेंट स्ट्रेटेजी यू आर गोइंग टू चेंज, दैट इज अ लेट, दैट इज लेग और लीड। और रिवर्स हो गया, अगर जब आपको लग रहा है कि आपका करेंसी डेप्रिशिएट होने वाला है तो इंपोर्टर क्या करेगा, लीड में जाएगा। लीड मीन्स पे अर्ली। तो अगर $1 इज इक्वल टू 70 है और उसको लग रहा है कि कमिंग मंथ में $1 इज इक्वल टू 72 हो जाएगा और उसको पेमेंट करना है, तो क्या करेगा भाई, 2 महीने के बाद नहीं, आज ही पे कर देता है। क्यों? बिकॉज अगर 2 महीने के बाद पे करेगा तो 72 लाख पे करना पड़ेगा, आज पे कर रहा है तो 70 लाख हो रहा है। तो क्या करेगा, यहाँ पे इंपोर्टर के लिए फायदा बंद है कि वो अर्ली पेमेंट कर ले। सिमिलरली एक्सपोर्टर, तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, आज $1 इज इक्वल टू 70 है तो सामने वाले को बोलेगा भाई, क्लाइंट को बोलेगा भाई कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा देर से पेमेंट करो, बिकॉज आज अगर पेमेंट आ रहा है तो $1 इज इक्वल टू 70 के हिसाब से 70 लाख रुपीज इनकम होगा। लेकिन अगर यही चीज वो 1-2 महीने के बाद अगर 72 हो रहा है तब पेमेंट करेगा तो आपको 72 लाख रुपीज मिलेगा। So that is known as a lead-led strategy. So based on the expectation, importer और exporter अपना पेमेंट जल्दी या मीन्स एडवांस में करेगा या पोस्टपोन करेगा, so that we call it as a lead and lag. Okay, so this is what the example. Okay, that home currency में appreciate. So मैंने जो PPT में अभी समझाया वही इसमें टेबल फॉर्म में पूरा पेमेंट है। Okay, have a look on this. I hope you are having a view on this. Okay, so I change my slide. Okay, and the last one is a exposure netting. Exposure netting means क्या हो गया, इससे सिंपल है। सपोज मैंने आपसे 100 रुपया उधार लिया है और आपने मुझसे 80 रुपया उधार लिया था पहले। तो एक्चुअली सिचुएशन क्या हो गई, आपने मुझसे 80 रुपया लिया था, ओके, मीन्स आपको मुझे 80 देना है, और मैंने आपसे 100 रुपया उधार लिया है, मीन्स मुझे आपको 100 देना है। सो इन शॉर्ट सिचुएशन क्या है, मैं आपसे 80 लूंगा और 100 वापस करूंगा। तो मुझे एक्चुअली नेटिंग आउट अगर हम करें तो मुझे सिर्फ 20 रुपये आपको देना है। तो यही चीज फॉरेन ट्रेड में भी होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, वो यूएस से रॉ मटेरियल परचेज करती है, उसको प्रोसेस करती है, फाइनल प्रोडक्ट बना के यूएस में ही बेच रही है, तो उसका जो इंपोर्ट हो रहा है वो भी यूएस डिनोमिनेशन में है और जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी यूएस में। तो क्या करेगा भाई, वो नेट आउट हो जाएगा डायरेक्टली, मीन्स जो बैलेंस है वही पे या रिसीव करना है। ओके, सो दैट इज नोन एज अ एक्सपोजर नेटिंग। लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है कि भाई अगर आपका इंपोर्ट किसी और कंट्री से है और एक्सपोर्ट किसी और कंट्री में है, सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे परफेक्ट हेज इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आपका अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री या करेंसी एक्सपोजर अलग अलग है, देन इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. So we discussed 3 strategy of financial strategy and the operational strategy, and now we come to the last part that should the firm hedge. So sometimes exam में question आता है hedging is required or not. So see, hedging is always favorable when you are expecting the unfavorable conditions. लेकिन जब favorable condition होगी then it is not advisable. So यहाँ पे there are some of the argument in favor and some of the argument in against of that. So यहाँ पे एक है not everyone agrees that a firm should hedge. क्यों नहीं करना चाहिए? So first, hedging से शेयर होल्डर का वेल्थ में कोई आप एडिशन नहीं कर रहे हो, ओके, बिकॉज शेयर होल्डर अपना एक्सपोजर खुद मैनेज कर सकते हैं, उसका आपके बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है। और हेजिंग में नॉट रिड्यूस द नॉन डाइवर्सिफाइड रिस्क ऑफ द फर्म. So the shareholder who hold a diversified portfolio are not helped when management hedges.
बिकॉज सी आपके एक्सपोजर से शेयर होल्डर का इन्वेस्टमेंट पे बहुत इम्पेक्ट नहीं आने वाला है, बिकॉज दे आर इन्वेस्टेड इन लॉट मेनी कंपनीज. So this is one of the reason that it is explained that hedging is not required. And in the presence of market imperfection, the firm should hedge. So these are in favor of that. कि भाई because we know that market is not perfect, and that is why the company face a risk of exchange rate movement. So in that case, it is advisable to go for a hedge. So information asymmetry is the first reason that manager may have better information than the shareholders, because manager पूरा दिन यही काम कर रहा है, तो वो अपने information sources, अपने countless, अपने analysis के हिसाब से he can do the better hedge. Then differential transaction cost. So the firm may be able to hedge at better price than the shareholders, because they are dealing in a bulk and they know the better way to reduce the transaction cost. And the last one is the default cost. हेजिंग में रिड्यूस द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज इसमें आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत कम हो जाता है. सो दिस आर द सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर इन फेवर ऑफ द फर्म शुड बी हेज. सो एंड लास्ट वन इज द टैक्सेस कैन बी लार्ज मार्केट imperfection. So this is related with the foreign country. This is not related to our, but okay. So corporation that face progressive tax rate may find that they pay less in taxes if they manage earning by hedging than if they don't have a boom and bust cycle in their earning system. Because we you know that there are some favorable movement and which may suddenly give a huge income to the company. And when it is a huge company, huge income because of the exchange rate, company need to pay the higher taxes. सो अगर हेज किया है सो उसका रेट और इनकम स्टेबल बन जाता है. सो दैट इज वन मोर रीजन दैट फर्म शुड हेज. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू.